السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج بہت دنوں بعد ہماری محفل میں موجود ہیں فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے ناراض رکن قومی اسمبلی محترم جناب راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے دل کی پڑاس نکالنے کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس کو بتائیں درد دل اپنا۔ اللہ خیر کرے، کوئی ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے؟ جنید صاحب، میں نے ویسے ہی شاعرانہ بات کی ہے، آپ تو منوس باتیں شروع کر بیٹھے۔ میں نے پوچھا ہے خیریت ہے نا؟ اور یار یہ شعر ہے، وہ کس کو سنائیں درد دل اپنا۔ جی سر جی، اگے تے سناؤ نا۔ اگو نہیں آؤں تے چپ کر گیا نا۔ آپ کو کوئی جگت کرے، آپ کو آگے نہ آئے تو پھر آپ چپ کر جاتے ہیں۔ نہیں چپ نہیں کری دا، اگو پھکی کر دی دی۔ ہمیں غلط مشورے نہ دو غوری صاحب، میں نے تو آپ کے منہ سے نہ کبھی پھکی سنی ہے نہ کبھی گندی سنی ہے۔ مہربانی جی، آپ دبنگ سیاستدان ہیں، مجھے دبنگ سیاستدان بڑے پسند ہیں جی۔ جی بہت زیادہ پرابلمز بن گئی ہوئی ہیں جنید صاحب، اپنے حلقے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اللہ کیا ہے؟ جنید صاحب اتنی خالی ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں بیچارے، ظاہر ہے انہوں نے مجھے ووٹ دیے ہوئے، وہ آگے کہتے ہیں راجہ صاحب نوکریاں دیں۔ میں آگے منتیں کرتا ہوں ان کی کہ نوکریاں دیں، کوئی اختیار ہی نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی میری بات سنتا ہے، نہ اسمبلی میں کبھی بولنے کا موقع دیا ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں اسمبلی میں، کوئی نیاز لے کے نہیں آئے ہوئے۔ اب جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز یا اپنی درخواستیں لے کے آتے ہیں، جب تو بندہ ان کو آگے سے کیا کہے، میری سوندہ کوئی نہیں۔ ان حکمرانوں سے بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے چٹا جواب دے دیتے ہیں۔ جنید صاحب اب میں باز نہیں آؤں گا، اب وہ دور گیا کہ جب پوسٹر پاٹ کے تو ہمارے اپوزیشن والے باہرلے ملکوں میں دوڑ جاتے تھے۔ نہ اب میں کسی کو اپنا پوسٹر پاڑنے دوں گا اور نہ میں کسی کو اب باہر دوڑنے دوں گا۔ میں نے اپنے حلقے میں کہہ دیا، میں کہا میری گال سن لو، میری کوئی نہیں جے سنتا، صاحب بتا دیا ہے، سنتا جو کوئی نہیں ہے۔ اب وہ نوکریاں مانتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں دینی تو پھر مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ تو جنید صاحب آپ کی محبت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے، ورنہ یہی فکرہ جب میں نے اسمبلی میں کہا ہے نا مجھے پھانسی دے دیں تو ایک دور سے آواز آئی ہے آمین۔ کوئی بات نہیں راجہ صاحب، اپوزیشن کا بندہ ہوگا۔ اور نہیں جی نہیں، اپوزیشن نہیں، یہ ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ جنید صاحب پارٹی کے اندر جو ہو رہا ہے ادھر ہی رہے، وہ پرائیویٹ بات تھی نا، میں کہہ رہا لیکن سوشل ڈسٹنسنگ۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، یہ سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، مگر میں جنید صاحب آپ کے ساتھ اکیلے میں بھی کوئی باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ یہ ہماری پارٹی کے اندر سے شرارتیں ہو رہی ہیں اور یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان کے وفادار ساتھی ہیں نا، جو روزے اول سے ان کے ساتھ ہیں، ان کی بات سنیں۔ جی بھٹو، ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا، آپ روزے اول سے عمران خان کے ساتھ کب آئے؟ جمعہ 4 دن ہوئے، آپ پی ٹی آئی میں آئے۔ نہیں میں وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بات ایسی ہے نا، وہ میں اکیلے سوشل ڈسٹینس تو ہونا چاہیے۔ یہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے ہی تو میں خان صاحب کو اپنی بات، اپنا موقف کلیئر نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بیٹھ کے تو اکیلے میں کرنے والی ہوتی ہیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ مجھے بلائیں، مجھے کہیں کہ راجہ آؤ یار، تم اپنے پیارے دوست ہو، آ کے بیٹھو میرے پاس، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے۔ آپ پارٹی پر اس طرح اپنا حق جما رہے ہیں، جمعہ 4 دن ہوئے ہیں آپ کو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ جنید صاحب آپ یہ بار بار غلط بات کر رہے ہیں، جمعے والے دن نہیں، میرا خیال ہے منگل تھا جس دن میں پارٹی میں شامل ہوا۔ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جمعے والے دن تو میں پارٹی میں آیا ہی نہیں ہوں۔ جمعے والے دن ویسے ہی فیصل آباد میں چھٹی ہوتی ہے۔ اب بالکل ان سے پوچھ لیں گوگا جی سے، یہ میرے فیصل آباد کے ہیں۔ بلکہ جنید صاحب یہ بھی میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ جمعہ 4 دن نہیں ہوتے، 8 دن ہوتے ہیں۔ ویسے راجہ صاحب منگل بدھ کو آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ منگل بدھ کو تو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ شاباش ہے، میں نے خان صاحب کے پاس جا کے شمولیت اختیار کی تھی، صدیق قصائی کے پاس جا کے نہیں تھی شمولیت اختیار کی۔ جنید صاحب اصل میں بات پتہ کیا ہے،
बात सिर्फ इतनी है कि अगर खान साहब को ये समझ आ जाए ना कि जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको बुला के मशवरा लिया जाए तो मेरा ख्याल है कामयाबी इनके कदम चूमेगी। देखिए, आपका काम ये है कि आप हुकूमत को मशवरे देते रहें, हुकूमत माने या ना माने, ये हुकूमत की मर्जी। लो बताओ ये क्या बात हुई? अगर उन्होंने मानना ही नहीं तो फिर मशवरे देने का फायदा क्या है? फिर तो चाचे कूमे की तरह बंदा महल्ले में मजाक बन जाता है। हमारे महल्ले में चाचा कूम है, उसको जानबूझ के लड़के छेड़ते हैं, चाचा का मशवरा दे दें, वो आगे से गंदी गालियां निकालता है क्योंकि सिर्फ चेजे के लिए उसको कहते हैं कि मशवरा दे दें। मनना हुंदा कोई नहीं, अखीर ते कह देंदे ने चाचे नु चाचा बकवास ही की थी। लेकिन आपसे तो हुकूमत चेजे के लिए भी मशवरा नहीं कर रही। ये देखे ना जरा, अच्छा भला एक मशहूर मारूफ आपका रुकन है, आपने उसको इस तरह साइड पे कर दिया हुआ है जैसे सर्दियों में पखा लपेट के साइड पे कर देते। हम हजारों की तादाद में वोट लेके आए हैं, तो जब वजारतें बांटने की बारी आई है तो पता नहीं कौन कौन किधर से निकल आया है। जो शक्ल से वजीर लगते हैं उनको किसी ने पूछा भी नहीं है। जुनैद साहब हंसे ना, आप कसम उठा के बताएं मैं शक्ल से मिनिस्टर नहीं लगता। सर ऐसे मिनिस्टर से ज्यादा वो जो पहले मिसाल आपने दी है ना, जिस तरह पंखे को लपेट के साइड पे रख दिया। सर कुछ ख्याल करें। नहीं मेरा मतलब वो है तो कि मैंने मिसाल दी थी। नहीं सर मेरी बात सुने, जिस तरह वो पंखे के ऊपर पुराना अखबार लपेट के उसको खामोश करा दिया जाता है, इसी तरह राजा साहब की हक बात को खामोश करवाया जाता है। बिल्कुल, और वजीर बना दिया फैसल वाडा। इस तरह के लड़के महल्ले में एक पहिया चौक के मोटरसाइकिल चलाने में मशहूर होते हैं। या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लड़के को एक्टिंग का शौक होता है, जब फ्लॉप हो जाए तो वो प्रोड्यूसर बन जाता है। या ऐसे लड़के का ये मशहूर होता है कि यार 18 साल इटली रहा उसे कुछ नहीं सुकीता और वापस आ गए। जुनैद साहब जो लगते हैं शक्ल वजह से मिनिस्टर, उनको बनाना चाहिए था इनको मिनिस्टर, तो फिर देखते ये कारकर्दगी किस तरह की होती। अब तो देखे 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है करप्शन इस हुकूमत में, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। सर आपने असेंबली में जो तकरीर की है, आपने कहा कि पहले रिश्वत का रेट 10,000 था, अब 30,000 है, तो इस तरह तो 3 गुना बढ़ती है, आप फरमा रहे हैं यहाँ पे 4 गुना बढ़ गई। तो वो तो मैंने परसों बात की थी ना, 2 दिन इसको फर्क नहीं पिया होगा। ये तो बड़ी तेजी के साथ इस तरह के काम हो रहे हैं। जुनैद साहब इनको चाहिए जो इनके हमदर्द हैं, खान साहब के जो पार्टी के हमदर्द हैं, जो पुराने साथी हैं इनके, उनको आगे लेके आए फ्रंट पे। जब इनके असली सिपा सलार लड़ रहे होंगे तो फिर ये इस जंग को जीत सकते हैं, वरना ये कोई आसान जंग नहीं है। वैसे ये तो है, राजा साहब अपनी वजह कहता है सिपा सालार लगते हैं, राजा रियाज अल तुगरल। ओए सही कह रहे हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जुनैद साहब मेरे तो अपने जो करीबी सपोर्टर है ना, वो कहते हैं राजा साहब अगर आपने पीटीआई ना ज्वाइन की होती तो अर्तुगरल में हीरो आपने होना था। अमान से मैं सीरियल कर लेता तो अगला इलेक्शन मैंने आराम से इस्तांबुल से लड़ लेना था। जाहिर है जब आपको बोलने ही नहीं दे रहे तो आप इस्तांबुल से लड़े या इस्तांबुल से लड़े की बात। सही बात है, मावाम की मसाइल ही नहीं अगर हमने हल करने तो हमें इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। अब आप ये देखें ना, ये जो मुल्तान मोटरवे बनी है, जी जी, ये जरा मैं तारीख की दुरुस्तगी करवा दूं जुनैद साहब, जब मैं पीपल पार्टी में था ना उस वक्त ये मोटरवे का मंसूबा शुरू हुआ था। फिर मैं नून लीग में जाने की सोच रहा था तो उस वक्त ये मुकम्मल हुई थी नून लीग दौर में। फिर मैं जब पीटीआई में आ गया तो फिर पीटीआई ने इस मोटरवे का इफ्तिताह किया है। जुनैद साहब मेरा बड़ा हिस्सा है इस मोटरवे के बनाने में। जाहिर है राजा साहब को 3 पार्टियां बदलनी पड़ी हैं एक सड़क बनाने के लिए। 2 बदली हैं जुनैद साहब, बीच में तीसरी का तो हमें सोचा ही था। आप सहाफियों के मुंह में को फिक्र आ जाए तो आप जिधर मर्जी मोड़ लेते। अब जब ये इसका इफ्तिताह करवा दिया मैंने तो खुदा के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दें।
आप देखें मुल्तान तक कोई सर्विस स्टेशन ही नहीं है। रास्ते में जुनैद साहब इतनी बुरी हालत होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाए, बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं एक दिन गया हूँ मुल्तान, रास्ते में पेट दर्द शुरू हुआ, मैंने ड्राइवर को फिर तौन में मारी है, मैं कहा साइड वाली ला ले। उसने साइड पे लाया, मैं तारे टाप के तो परे जाना चाह रहा था कि मुझे ट्यूबवेल नजर आया। तो तारे टाप कर आप क्या करने जा रहे थे? ट्यूबवेल ठीक करन चले था। बताया तो है, पेट में दर्द हो रही थी, वो तारे टाप रहा था, उधर मोटरवे वाले आ गए। वो तो मेरे ड्राइवर ने बताया गोली ना मारना राजा साहब जी। पुलिस मुकाबला हो चलिया था उधर जुनैद साहब। राजा साहब आपको क्या हो गया? फांसी, गोली, कैसी बातें कर रहे? एक ऑप्शन आपने खुद दी है कि अगर मेरे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये एक रीजनेबल ऑप्शन है, आप रिजाइन कर दें। बाकी जड़ा मैं पौना घंटा चीखता रहा हूं वो सारी बकवास की है मैंने। आप बड़े तेज हैं, आपने बीच में वो फिक्रा पकड़ा है जो आपके मतलब का है। मेरा आप सारा सियासी कैरियर बर्बाद करना चाहते हैं। फिक्र ना करो राजा साहब, असी तुहाडे वास्ते दुआ गो हां। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਦਾਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। नाज़रीन, यहाँ में लेकिन एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पेशावर में कार्रवाई करके एक मकान से बड़ी मिकदार में ये खुदकुश जैकेटें और इतना यानी ज़्यादा असला बरामद किया गया कि अल्लाह ना करे अगर वो इस्तेमाल में आ जाता तो बड़े पैमाने पे तबाही फैल सकती थी। उसका कहीं जिक्र ही नहीं। ये जो कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे जो दहशतगर्दी का हमला नाकाम गए, उनके जो जिस्म थे वहीं उधर ही खाक में मिला दिए गए। मगर एक बात जो है ना जी, वो बहुत जरूरी है जी, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं मनफी पैराए में जी, वहां पे इस तरह का जब कोई मामला आता है ना, तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को, पूरे मुल्क को सलूट पेश करना हाँ चाहिए जी। ऐसे लोगों को जो आपके मुल्क के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपके मुल्क पे आंच नहीं आने देते और अपनी जान कुर्बान करते हैं। और दूसरी तरफ तुम देखो ना कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हैरत होती है, अफसोस होता है कि जो इसको भी इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं कि दुनिया के किस मुल्क में इस कार्रवाई के बाद उस मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये कहा जा सकता है कि भाई ये आपका फेलियर है। यार मेरा ख्याल है कि हार्डली चंद मिनटों के अंदर उनके चारों के चारों जो दहशतगर्द हैं वो मार दिए गए। तो अब वीडियो आई है। हाँ वीडियो। अब जाहिर है कि जब दहशतगर्द हमलावर होते हैं तो उनके हाथ में आजकल की गोलेलें तो नहीं पकड़ी होगी ना, जदीद तरीन असलहा मौजूद होता है। तो उन्होंने जाहिर है ग्रेनेड फेंक के इतना जानी नुकसान तो करना है। हम सल्यूट पेश करते हैं उन मुजाहिदीन को, मैं मुजाहिदीन कहता हूँ, जो सिक्योरिटी के इदारे वहां पे मामूर थे। उन्होंने सही मायनों में अपनी जानें हथेली पे रख के कौम को पेश की हैं और हिफाजत की है, न जाने कितने लोगों की जान। मैं कहता हूं जी कि मुल्क की इज्जत और वकार के हवाले से जब कोई बात होती है तो उस वक्त अगर कोई अपने आप को या अपने मुल्क को या अपनी एजेंसियों को दूसरे गैर मुमालिक दुश्मनों के मुकाबले में गुफ्तगू करते हुए अगर कोई बुरा भला कहता है अपने मुल्क को, तो मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अब्बा जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਿਆ वरना ਤੁਸੀਂ बंदे ठीक नहीं है। हाँ, उनको अपने वालिदैन से भी फिर प्यार नहीं होता। हाँ जी, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हमारे माँ बाप ने हासिल किया। इन्हीं हमारी इंटेलिजेंस अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मीडिया में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जिन्होंने इसको फेलियर कहा है, लेकिन ऐसे लोग मौजूद थे बहरहाल। तो उनकी खिदमत में मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि इसी मतलब ये ISI और NECTD की पेशगी इतलात की बुनियाद पे, जो रोजाना की बुनियाद पे इस तरह के कई हमले जो हैं छोटे लेवल पे और बड़ी सतह पर नाकाम बनाए जाते हैं, वो हमें नहीं पता चलते। सेम डे जिस दिन ये हमला हुआ है, पेशावर में कार्रवाई करके एक मकान से बड़ी मिकदार में ये खुदकुश जैकेटें और इतना यानी ज़्यादा असला बरामद किया गया कि अल्लाह ना करे अगर वो इस्तेमाल में आ जाता तो बड़े पैमाने पे तबाही फैल सकती थी। उसका कहीं जिक्र ही नहीं, उसको कहीं अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो
मतलब क्रिटिसाइज करें, ये मतलब एक आम शहरी की हैसियत से आपका हक बनता है कि जहाँ पर आप सिक्योरिटी लैब्स देखते हैं, सिक्योरिटी का फेलियर देखते हैं, इंटेलिजेंस का फेलियर देखते हैं, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मामला तो देखें और फिर हालात देखें। इस वक्त चारों तरफ से हिंदुस्तान की कैफियत इस वक्त उस जाल में फंसे हुए एक जानवर की है जो फड़फड़ा रहा है कि कहीं ना कहीं से मेरा दाव लग जाए। अब 1.5 दिन के अंदर इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये पूरा ट्रेस करके, कॉल रिकॉर्ड ट्रेस करके कि अफगानिस्तान का जो यहाँ गर्देज शहर है, यहाँ पे इनका वहाँ पे कौंसल खाना भी, मुझे आज तक तो इनको अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के जो कौंसल खाने हैं, जो कल्चरल सेंटर हैं, इन्हीं का वजूद की समझ ही नहीं आई कि ये वहाँ पे कौन सा कल्चर फैला रहे हैं इंडिया का। 18 की तादाद में तो इनके कौंसल खाने जो पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ हैं, छोटे बड़े मिला के, ये वहाँ कर रहे हैं। तो गर्देज से इन्होंने वो कॉल्स ट्रेस किए हैं जो वहां से इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था। तो ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यार अब तो इंडिया के अंदर से मोदी को इतनी को गाल पड़ रही है, इतनी को गाल ईमान से पड़ रही है कि अल्लाह माफी दे। आप उधर के लोगों का अगर पर्सनली किसी को सुन लें, आपको बाहर के मुल्क में को इंडियन मिल जाए, हाँ जी, तो वो कहते हैं जी पता नहीं कितों मनहूस आ गया है साडे मुल्क, साडे मुल्क का बेड़ा गर्क किसने कर दिया। हाँ जी। दूसरी तरफ देखो कि अब इंडिया को इस आलम में जब उसको अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, तो वो फिर कोई लगी लिपटी भी नहीं रख रहा। अब वो कवर अप करने की भी कोशिश नहीं करता, खास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से। तो मैं अभी अगले रोज आउटलुक इंडिया में स्टोरी पढ़ रहा था कि उन्होंने 2 रोज़ा डायलॉग करवाया है जिसमें हिंदुस्तान की फौज के आला तरीन अफसरान बराह रास्त शामिल थे, एयर मार्शल तक शामिल था, और उन्होंने खुलकर ये ऐलान किया, एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के हवाले से ऐलान जंग किया है कि ना सिर्फ आइंदा हम बलोचिस्तान के जो अलहदगी पसंद है, वहाँ पर जितने भी हैं पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनको किस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उनको हम ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल फंडिंग करेंगे बल्कि उनको असलहा भी देंगे। खुल के उन्होंने ऐलान किया। 21 जून को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल 2 टोक लफ्ज़ों में ये ऐलान किया था, और एग्जैक्टली वही हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो अपने स्लीपर सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स मीन जो मतलब उनके सीक्रेट एजेंट होते हैं, जिनको मतलब जासूस कहते हैं ना, जासूसी का जो नेटवर्क होते हैं मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल, जिनको मुआवजा मिल रहा होता है मंथली या समाही या किसी भी बुनियाद पे, उनको मुआवजा मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन उनको कहा यह जाता है कि मुनासिब वक्त पे आपको ऑर्डर दिया जाएगा, मुनासिब वक्त पर आपको हदफ दिया जाएगा, उनको उस वक्त तक सुलाया जाता है। दीज आर स्लीपर सेल्स। तो उस वक्त 21 जून को शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये हिंदुस्तान किसी वक्त भी आने वाले दिनों में अपने जो स्लीपर सेल्स हैं, जिनकी कराची में जो तादाद जो है एक वक्त में दर्जनों से ज्यादा थी, दर्जन भर से ज्यादा थी, पकड़े भी गए थे, डीएक्टिवेट भी किए गए थे, लेकिन और ज़ाहिर वो किन्होंने किए थे, वो इन्हीं एजेंसीज ने किए थे। तो इस तरह मुंह फाड़ के बात कर देना ये बड़ा आसान है, लेकिन बहरहाल मतलब इस सूरत हाल को महसूस करना एक मुहिब्बे वतन की हैसियत से, वो एक बिल्कुल दूसरा मामला है। और हमें इन मामलात में, जैसा भाईजान फरमा रहे हैं कि इन मामलात में हमें एक पाकिस्तानी बन के ही सोचना चाहिए। हम हक पे हैं, वो शरारत करते हैं, इंशाल्लाह उनको मारेंगे इंशाल्लाह। और यार शरारत की तो शरारत की, आप तो उनकी बेगैरती की ये हद हो गई है कि ये कल परसों से जो ये बच्चे की तस्वीर चल रही है, और नाने अपने के सीने पे बैठा हुआ है, रो रहा है, और किस तरह वो बिलक रहा है बच्चा, और किस तरह उसे पता ही नहीं है कि ये तो हुआ क्या है। अच्छा, तुम ये देखो कि मतलब दुनिया की मशहूर तरीन फिल्में बनाने वाला हिंदुस्तान जो है, वो बशीर अहमद की शहादत के बाद उसकी जो कवर अप फिल्म बनाई है उन्होंने, जो मतलब वहाँ पे मौजूद जितने ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने कहा है, बशीर अहमद के अहले खाना ने कहा है, जितने लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे, सब ने कहा है कि हमारी आंखों के सामने बशीर अहमद को नाके पे गाड़ी से बेदर्दी के साथ गाड़ी के अंदर से निकाला गया है और उसको गोलियों से भून दिया गया है। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, उनको पता था इसके बाद एहतजाज होगा और शदीद एहतजाज होगा, उन्होंने उस बच्चे को लेके उस पर फिल्में बनाई हैं। कोई उसको पापड़ खिला रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई उसको पीछे कर रहा है। साफ अंधे को पता चल रहा है कि इंतहाई गंदी हिदायतकारी के तहत वो फिल्म बंदी की गई है। बच्चे को समझ आ
رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کی جو فلم بندی کی گئی ہے, جو تصویریں انڈین فوجیوں کے ساتھ کھینچی گئی ہیں, وہ ایک باقاعدہ اسکرپٹڈ ہے, ہدایت کاری کے تحت ہے, اور کسی پینک سچویشن میں نہیں کھینچی گئی. اچھا, اور بے حسی کا یہ عالم ہے پورے عالم میں کہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا, نہیں کر رہا, کوئی بول بالکل نہیں رہا, کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہا. یہ وہ جو ہے ملک یاسین کی بیگم, انہوں نے بھی یہ کہا ہے مشال ملک کہ صرف گفتگو کی بجائے عملی طور پہ کچھ فوری کریں. قدم اٹھائیں. بڑے مظالم بڑھ گئے ہیں انڈیا کے, انڈین فوج کے. فوری طور پہ کم از کم کچھ نہیں تو چلو عالم اسلام کو تو چاہیے کہ فوری طور پہ بائیکاٹ کریں. ان کا سفارتی, ان کا یہ اپنا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے. ایسی کون سی بات ہے, ایسا کون سا عذاب پڑا ہوا ہے. یہ آپ کو یہ کرونا کی آئسولیشن کے دنوں میں یہ محسوس ہو جانا چاہیے آپ کے اس مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے کہ کوئی ایسی بات نہیں, زندگی گزر جاتی ہے, زندگی گزر جاتی ہے, سائیڈ پہ ہو کے بھی زندگی گزر جاتی ہے. اور آپ کم از کم کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے, اس کے احتجاج میں آپ آئسولیٹ ہو جائیں, چھوڑ دیں ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو. ان کی کیا ضرورت ہے, ان کا کیا, ان کے ساتھ اگر نہ ہوگا سفارتی تعلق, نہ ہوگا تجارتی تعلق, تو کیا ہو جائے گا. ہاں جی, زندگی تو وہی ہے جو رب نے دینی ہے. جی اصل چ انڈیا والے نو اتھوں موت پئی ہے, جڑا لداخ چ انہاں نو چین والے کو مار پئی ہے نا, بہت مار پئی بیزتی ہوئی ہے. اور چین والے نے وہ جگہ بھی کھولی ہے جتھے جا کے انڈیا شوٹنگ کرتے تھے نا, فلماں بناتے تھے. بوم تسو جھیل جو ہے, اور عامر خان کی 3 ایڈیٹس فلم کا آخری سین ہے, وہ بھی اسی جھیل پہ فلمایا گیا. جی انہوں نے وہ آخری سین ایڈٹ کر دیتا ہے, انہوں نے کہا یہ سین تو اڈا نہیں, ہونے دوڑ جاؤ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشرے کا ایک ایسا کردار جو موسم کی شدت کے باوجود اپنے فرائض سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہے, یعنی ایک ٹریفک سارجنٹ. جنید صاحب شاعر کہتا ہے, محبت ایسا ڈڑیا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہو. یہ محبت ایک ڈڑیا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ شاعر سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ڈڑیا کی جگہ سمندر لکھنا چاہیے. یہ سمندر ہے, محبت ایک سمندر ہے. ویسے اسی شاعر نے سمندر بھی لکھا ہوا ہے, یہ امجد صاحب کا شعر ہے, اور امجد صاحب نے معروف ڈرامہ سیریل سمندر بھی لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس پیسے تھوڑے ہوں گے, انہوں نے ڈڑیا لکھ دیا ہوگا, پھر 4 پیسے اللہ نے دے دیے, پھر سمندر لکھ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, ہمارے سب دونوں پانی ہوندا ہے کہ ایڈی بحث کرنے لوگ. بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت سمندر ہے. جی دور تک, جتنی دیر تک آپ کی نظر جائے یا جتنی دیر تک آپ اڑ سکیں, صرف پانی پانی ہوتا ہے. محبت بہت وسیع سمندر ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے کبھی بھی بڑے نہیں لگتے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل چونکہ گرمی کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے وہ دوست احباب عوام کے وہ لوگ جو گاڑی میں نہیں ہوتے, یعنی اے سی میں نہیں بیٹھے ہوتے, وہ گرمی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, ان کا بھی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. جو موسم کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, ان کا بھی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. تو پھر ہم لوگ جو وارڈن ہیں, جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم بھی کھلے آسمان کے نیچے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, اور سورج کی تیز شعاؤں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارا بھی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. میں دونوں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سواریاں ہیں, جو لوگ ہیں عوام جن کی ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں, جن کی ہم نوکری کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹیمپریچر کنٹرول رکھے. اور جو میں اپنے وارڈن بھائی دوست احباب ہیں, ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ٹیمپریچر کنٹرول رکھے. اگر کسی کو ایک بندہ اگر کوئی بری بات کرتا ہے تو دوسرے کو ہضم کر لینی چاہیے. اگر کوئی ایک بات گرمی میں کرتا ہے تو دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. اب تو بڑا درس پیار کا دے رہے آپ, چلان کرتے وقت تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وارڈن حضرات کو بھی غصہ چڑھتا ہے, وہ بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں, مجھے بھی غصہ چڑھ جاتا ہے. میں بھی ایک طرح کا انسان ہی ہوں. صحیح دس. لو آپ کو تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کا اپنا کریکٹر مشکوک ہے. کیسے مشکوک ہے جی؟ آپ انسان ہیں تو میں نہیں ہو سکتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ غصہ نہیں کرنا بڑے چاہیے. بندے سے تو تڑاک کرتے ہیں, تگڑے بندے کو جی جی کرتے ہیں.
नहीं मैं इस बात को भी मैं कंडेम करूंगा, मैं बिल्कुल इसका साथ नहीं दूंगा। जो माड़ा आदमी है वो भी इंसान है, जो तगड़ा बंदा है वो भी इंसान है। जब हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम वार्डन है, हमें सबको इक्वल डील करना चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की। आप अमीर हैं या गरीब हैं? जब मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ गरीब होता हूँ, जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ अमीर होता हूँ। देखिए हमारी नजर में ये नहीं है। आप हमारी नजर में ये, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो फिर भी अगर आप गलत काम करेंगे तो आपका चलान होगा। अगर आप गाड़ी पे हैं तो गलत काम करेंगे फिर भी आपका चलान होगा। देखें, अवाम तो बहरहाल अवाम है, ठीक है ना, अवाम को भी बहरहाल एजुकेट किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों की तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि आपने जब इस तरह के आर्गुमेंट्स हो जाते हैं तो अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात किया कि हमारी ज्यादा जिम्मेदारी। यू आर राइट, यू आर राइट। मगर कई जगह पे जुनैद साहब ये होता है कि वार्डन जो है ना वो टॉलरेट कर रहा होता है। क्या सर? टॉलरेट जी, ये जो मैं अभी आपको कर रहा हूं ना, इसको कहते हैं टॉलरेट। अब आप दोबारा पूछेंगे तो मैं फिर उठ के टॉलरेट करूंगा। भाई आगे ना गुस्से वाली बात। जुनैद साहब आपकी बात ठीक है कि ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है, हमें टॉलरेट करना चाहिए। मगर मैं माफी चाहता हूँ, साथ में ये भी याद कराना चाहता हूँ कि आप लोग घरों से उठ के आते हैं, गाड़ी में बैठ के या मोटरसाइकिल पर बैठ के। वार्डन जो है वो बेचारा पता नहीं कब से ड्यूटी कर रहा होता है और सड़क के ऊपर खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है। उसको ना कोई पानी पिलाने वाला होता है, ना कोई उसको देखने वाला होता है। असलम भाई कोई धुप च खलोता होंदा, बाकी चार छावे खलोते होंदे। और पंजे दे पंजे धुप चला के टेढ़े अड़के कर ली बस कर दी यार। एक तो ड्यूटी दे रहा होता है, बाकी भी ड्यूटी दे रहे होता है। नजर उनकी जो है वो औकाबी होती है, वो सड़क पे होती है। बिल्कुल। तो बात यह है कि सबको टॉलरेट करना चाहिए। जो पहले अपने गुस्से को पी जाएगा उसको ज्यादा स्वाब होगा। वैसे आवाम का गुस्सा ठंडा करने का एक और तरीका भी है। हुक्म करें। हर वार्डन के पास शिकंजवी का एक कूलर होना चाहिए। अच्छा, जिस आदमी चलान करने लगे उसको पहले एक गिलास शिकंजवी का पिलाएं, फिर उसका चलान करें, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या उठे शिकंजवी ला के बैठे हुए आप वाली, ये आप क्या सजेशन दे रहे हैं? जुनैद साहब आपने तो काठा का ये दानिशवर है, ये तो कुछ शिकंजवी वाला पाई लग रही है। एक तजवीज है, अगर आपको नहीं पसंद आई तो रिजेक्ट कर दे यार। ये कौन सी तजवीज है? कितना बुरा लगेगा। 12 रुपए का गिलास, 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 12 रुपए का गिलास। वो कल को 8 मारे यार। हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे या शिकंजवी कंट्रोल करेंगे? ये 12 रुपए का गिलास बेच रहे हैं असलम साहब, इसमें चांदी के वर्क कूट कर डाले हुए हैं। देखो ना डाटा पै गया ना, हले एक गिलास नहीं बिकिया, पहला गाह की लड़ पे। हम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर बात है, और साथ अगर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लें हम लोग भी और आप लोग भी, तो ये सोने पे सुहागा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, ये जो अभी ये कोरोना की वजह से काम शाम बंद हुआ, लोग आइसोलेट हुए और अपना बहुत ज्यादा काम मईशत के हवाले से, घरों के बजट के हवाले से, खास तौर पे जो माड़े लोग हैं या दरमियाने लोग हैं, उनका बड़ा ही काम खराब हुआ है। हाँ जी। मुझे इन दिनों में एक चीज जो है वो बड़ी याद आई है। यहाँ पे कुछ, एक तो ये सड़कों पे निकले फकीर बेचारे मांगने वाले, कुछ ऐसे लोग भी मजबूरन निकले जिनकी खुददारी उनको ये इजाजत नहीं देती थी, और कुछ ऐसे लोग जो बेचारे नहीं निकल पाए, जो अपनी खुदी और वकार की वजह से बेचारे अंदर भूखे बंद रहे कई कई दिन, और बड़ी बुरी हालत रही। कई ऐसे घरों को मैं खुद जानता हूं जिनको 4-4, 5-5 दिन के बाद पता चला कोई इनके घर में तो खाना ही नहीं है, तो ना ही उन्होंने किसी को बताया। तो वो दोस्तों में इस तरह की गुफ्तगू में पता चला कि यार फलां की बड़ी हालत खराब है या फलां की बड़ी हालत खराब है। तो उस हवाले से मुझे एक चीज जुनैद बहुत याद आई है कि यूरोप में आज तक, ये बड़ा पुराना वहाँ का रवाज है और आज तक मौजूद है जी। वहाँ के जो रेस्टोरेंट है ना जी, मुख्तलिफ और ढाबे शाबे और ये कॉफी शॉप हाँ जी, और इस तरह की जो चीजें हैं, उनके वहां पे खाने पीने वाली जो जगहें हैं जी, वहां पे एक वाइट बोर्ड का रवाज है। वाइट बोर्ड, वहां एक वाइट बोर्ड लगा होता है रेस्टोरेंट में, और कोई जाते हैं वहां पे खाना खाने के लिए, हाँ जी। तो वो अपना ऑर्डर करते हैं जो, उसमें वो एक आध डिश वाइट बोर्ड के लिए करते हैं।
मतलब खाना खाने का ऑर्डर जो करते हैं हाँ जी। उसमें वो कहते हैं कि 2 पुलाव ले आओ सपोज, और एक अपना कोरमा ले आओ, ये वो, और एक जो है ना जी पुलाव की प्लेट डिश, एक पुलाव, वो व्हाइट बोर्ड के लिए ले आओ। हाय हाय हाय। वो व्हाइट बोर्ड वाली जो है ना जी डिश, Dishes, हाँ जी। वो टेबल पे नहीं आती, अच्छा बाकी चीजें टेबल पे आ जाती हैं, वो खा पी लेते हैं। जब बिल आता है जी, जी। तो उसमें वो व्हाइट बोर्ड वाली डिश का पैसे भी लगे होते हैं, अच्छा। वो पे करके चले जाते हैं। और रेस्टोरेंट वाले वो जो एक डिश व्हाइट बोर्ड व्हाइट की बोर्ड है उसकी पर्ची जाके उधर एक बोर्ड पड़ा होता है नुक्कड़ में, उसके ऊपर लगा देते हैं। जब कोई ऐसा आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं है और वो मांगना भी नहीं चाहता, वो इस तरह के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पे व्हाइट बोर्ड मौजूद होता है, जी। वो जाके व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, वो अपनी मर्जी की डिश उतारते हैं और टेबल पे बैठ के ऑर्डर करते हैं, ये लेके आओ, हाय, वो हाय, लाता है, पेमेंट उसकी हो चुकी होती है। एक तो है ऐसे लोग, एक ऐसे भी हैं जो लोगों के बैठे हुए व्हाइट बोर्ड की तरफ भी नहीं जाना चाहते, अच्छा वो जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। वो बैरे को ऑर्डर उसी तरह टर्न बुलाते हैं, इधर आइए, वो आता है तो वो पूछते हैं व्हाइट बोर्ड पे क्या क्या पका है, अच्छा वो बताता है जी कि व्हाइट बोर्ड पे है। ये चीजें हैं, वो कहता है वो फलान चीज ले आओ, वो जाके वो ला के तो उनको पेश कर देता है और व्हाइट बोर्ड से वो वाली चिट पर्ची हटा उतार के फेंक देते हैं। इस तरह इज्जत भी मजरू नहीं होती। यानी इतना खूबसूरत तरीका, इतना खूबसूरत तरीका मेरे जहन में इन दिनों में बहुत आया है। हमारे तो इस्लाम में यहाँ तक कहा गया है कि नील के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इतने प्यारे और इतने खूबसूरत मजहब के हम लोग हैं हम। और इतनी खूबसूरत हमारे मजहब में मिसालें मौजूद हैं और ऑर्डर्स मौजूद हैं, हाँ जी। अहकामात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे खूबसूरत अहकामात मौजूद हैं, ऐसी ऐसी प्यारे अकवाल मौजूद हैं, ऐसी ऐसी प्यारी अहादीस मौजूद हैं, जिससे हमें ये फील होता है कि हमें तो कोई बंदा भूखा होना ही नहीं चाहिए। सही। क्यों है हम क्यों नहीं इस तरह। अब मौजूदा दौर के अंदर जैसे ये देखे ना, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड की मिसाल हाँ दी है, जी जी। इस तरह को कोई तरीका कार यहाँ पे निकल सकता हो है। सकता है, हाँ जी। यहाँ पे जब बच्चों की फीसें देने जाते हैं वहां पे कोई व्हाइट बोर्ड मौजूद हो, वहां पे जाके आप अगर कोई व्हाइट बोर्ड के ऊपर बच्चे की फीस चस्पा कर देते हैं और वो किसी यतीम बच्चे को, किसी माड़े बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जो बड़ा लायक है, पढ़ना चाहता है मगर उसके पास पैसे नहीं है, वो व्हाइट बोर्ड से अपनी फीस दे ले, बहुत अच्छा। तो फिर क्या है। इस तरह हमारे रेस्टोरेंटों में क्यों नहीं है, हाँ जी। इस तरह के हमारे अस्पतालों में क्यों नहीं है। हाँ जी, हॉस्पिटल। बजाय इसके कि आप ये सोचते रहे कि हम लोग जी अब किसको ज़कात दें, अब किसको जाके हम गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते जी, ये तो पहुंचती नहीं है हाँ, गरीब आदमी गरीब की आदमी तरफ, तक, हाँ जी। भाई जी ये तो डैम बनता ही नहीं, हम क्यों डैम में फंड दें। यार ये बड़े मामला छोड़ के आप ये छोटी छोटी चीजें जो है, रेस्टोरेंट, आपके अस्पताल, आपके स्कूल बच्चों के, इसमें अगर आप व्हाइट बोर्ड लगा दें और इस तरह का कोई सिस्टम बना दें तो आप इस लेवल पे, निचले लेवल पे बेशुमार लोगों की हेल्प कर सकते हो सकती है, बिल्कुल सही। हाँ ये है कि आप अगर व्हाइट बोर्ड रेस्टोरेंट में लगाते हैं, उस रेस्टोरेंट में आप गोगे का दाखला बंद कर दो। एक गोगा ही है ना जो आपको चुभ रहा है, आपके जहन में ये आ रहा है कि गोगा क्या। मैंने तो गोगे का नाम भी नहीं लिया। गोगा तो हमारा इंतहाई तमतराक के साथ किसी 5 स्टार होटल में भी जाके पूरी शान शौकत के साथ बैठता है, जाके कहता है 5 व्हाइट बोर्ड ले आओ, सारा कुछ। और कहते हैं कि पर्चियां ना उतार के लाओ, बोर्ड उठा के ले आओ, मैं बोर्डा समेत खा जाऊंगा सारा। और फिर बाद में कह रहा होता है यार आज व्हाइट बोर्ड में काली मिर्च कम थी। वेटर दूरों वे के कहते वो व्हाइट बोर्ड का दुश्मन है। नहीं मान से मुझे बड़ा ही प्यार आता है ये बात याद करके। काफी अरसा पहले मुझे वहां पे एक दोस्त ने बताया था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ये पिछले दिनों फिर किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था, अच्छा, तो मुझे एकदम याद आ गया कोई, ये तो वहाँ दोस्त है हमारे जफर साहब, उन्होंने बताया था। जी, जी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्यारी बात थी और ये है, हम तो अब बहुत। जो कर रहे हैं उसमें हाँ जो जी। नहीं कर रहे, तो अब हमें ये बात करनी चाहिए कि खुदा वास्ते कोई ऐसा खुदी को मजरू होने से बचा के कोई ऐसा तरीका कार वज़ा कर दें इधर पाकिस्तान के अंदर भी कम से कम, जिससे किसी गरीब आदमी की खुदी मजरू ना हो, उसकी अना को ठेस ना पहुंचे और वो पेट भर ले, वो अपने बच्चों को पढ़ा ले।
नाज़रीन, ये था आज का हस्ब हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर मर जाए तो खेल खत्म। वाह जी वाह। खुश रखें, वाह आपसे जी वाह। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।